डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पब्लिक फाइनेंस में क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स। हम इसे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने दो सिस्टम्स देखे थे। मेथड्स क्या क्या है, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। हमने सबसे पहले देखा था रिग्रेसिव टैक्सेशन। द रेट ऑफ टैक्सेशन डिक्रीजेस एज द टैक्स बेस इंक्रीजेस। दिस इज़ नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल क्योंकि ये इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट हमने जो देखा था वो था proportional tax system. That means same for all the people have to pay the say at the same rate of taxation. वो भी desirable नहीं है। constant रहता है whatever the tax base is, पर आप सभी को सेम रेट पर टैक्स पे करना होता है, whether the income is large or small. This was advocated by classical economists due to its simplicity and uniformity, but criticized for its inelastic nature because it also enhances inequalities. हम नेक्स्ट सिस्टम लेते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? यदि आय में वृद्धि के साथ कर के दर में भी वृद्धि होती जाए तो ऐसी कर प्रणाली को प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वास्तविक भार जो है वो धनी व्यक्तियों पर अधिक तथा निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़ता है, और ये सबसे बेहतर कर प्रणाली होती है क्योंकि करों के भुगतान में न्यायशीलता का सिद्धांत अपनाया जाता है। In this tax system, the rate of taxation increases as the tax base increases. क्या मतलब है इसका? As the income increases, tax rate also increases. This one is the universally accepted system, and it is based on the application of principle of diminishing marginal utility of income and ability to pay. It also satisfies the canon of economy and canon of productivity. हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्योंकि मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का ही है। आप इसमें देख सकते हैं कि जब कर की दर 10 आय आपकी 5 लाख है तो कर की दर सपोज 10% है, और जब आपकी आय 10 लाख है तो कर की दर 20% है, और जब आपकी आय 15 लाख है तो कर की दर 30% है। इसे हम प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। This is the most universally accepted as the best system of taxation because it is based on the principle of diminishing marginal utility of income and ability to pay. As income increases, आप भी जानते हैं marginal utility of income diminishes. आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल प्रिंसिपल को पढ़ा है। उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपके पास सोर्सेज बढ़ते जाते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। द हायर द इनकम द ग्रेटर द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, ऐसा माना जाता है। The recent popularity of progressive taxation is why, due to the growth of democratic values, the diffusion of socialist ideas, and recent developments in economic theory. क्योंकि समाज जो है द गवर्नमेंट्स वर्क फॉर द वेलफेयर सोसाइटी, तो प्रगतिशील कर प्रणाली जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। This principle has been advocated by different writers on different grounds.
जो मार्शल और पिगू हैं उन्होंने भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को ही सपोर्ट किया है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉब्सन, progressive taxation justifies the canon of ability or equality. It secures equality in sacrifice and leads to justice in the distribution of tax burden. कैसे? Because the marginal utility of money to a rich person is less than a poor person, the rich should be taxed at a higher rate than the poor. In progressive taxation, higher income group contributes more as taxes. That's why it justifies equality in payment and fair distribution of tax burden. हमें किसी भी मेथड की मेरिट्स या डीमेरिट्स देखनी है तो वी शुड रिलेट इट टू द कैनन ऑफ टैक्सेशन कि कौन से जो बेस्ट कैनन ऑफ टैक्सेशन थे उसको ये फुलफिल करता है या नहीं. तो कैनन ऑफ एबिलिटी और इक्वालिटी हमने जो पढ़ा था उसको ये फुलफिल करता है. Next is reduces inequality in the distribution of income. How? It is a powerful tool to reduce inequality in the distribution of income and wealth. In this type of taxation, the rich contributes more volume of taxation because of their high ability to pay. Hence, Professor Calder emphasized the role of progressive taxation to reduce the inequality of income. Next canon जो ये satisfy करता है the canon of economy. How? They are economical because cost of collection does not increase with the increase in rate and income. It is highly elastic also. कैसे? With the slight change in the rate of taxation, the government can increase its revenue collection considerably. It is elastic in nature. Every year जब बजट आता है तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को बढ़ाती है या घटाती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. तो इट इज़ नॉट फिक्स्ड बट इट इज़ वेरी इलास्टिक. It satisfies the canon of productivity also. कैसे? उत्पादकता का जो canon है उसको भी satisfy करती है because the need for resources of the government is on an increase due to increasing functions. Progressive taxation helps the government to mobilize the required revenue for meeting growing public expenditure without much strain and collection cost. तो ये भी बेस्ट है बिकॉज इट सेटिस्फाइज द कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑल्सो. नेक्स्ट हम देखें तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हेल्प्स टू कर्व इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बिकॉज इट रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम एंड हेल्प्स टू रिड्यूस कंजम्पशन डिमांड. जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उन पर अगर ये 30% 40% टैक्स लग रहा है तो डेफिनेटली इससे महंगाई पर रोक लगती है बिकॉज कंजम्पशन डिमांड, उपभोक्ता की जो डिमांड है वो घट जाती है. द रेवेन्यू मोबिलाइज देयर इन मे बी डाइवर्टेड फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. जित पैसा बचाकर सेविंग्स ज़्यादा होती हैं, प्रगतिशील कर प्रणाली में सेविंग्स ज़्यादा होती हैं तो लोग उसको री इन्वेस्ट करते हैं. और नेक्स्ट जो कैनन ऑफ कन्वीनियंस है, progressive taxation is very convenient from the administrative point of view also. It can act as a check on concentration of economic wealth and power. Progressive taxation has an inbuilt mechanism to deal with the undesirable effects of inflation and deflation. इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव आते हैं बिकॉज इसकी नेचर जो है वो इलास्टिक है तो वी कैन चेंज इट्स इफेक्ट इज सीन इमीजिएटली बिकॉज जैसे ही कर प्रणाली में चेंज करते हैं वो हमें दिखाई देता है ड्यू टू इट्स इलास्टिक नेचर. प्रोफेसर टेलर ने भी जस्टिफाई किया है
because of revenue productivity, optimum individual allocation of tax burden, promotion of stability and growth, and optimum social allocation of resources. इन बेसिस पर प्रोफेसर टेलर ने भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को जस्टिफाई किया है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि प्रोफेसर हॉब्सन ने ये बताने की कोशिश की है कि वी शुड टैक्स द सरप्लस नॉट द कॉस्ट। कैसे? अकॉर्डिंग टू हिम एवरी इंडिविजुअल इनकम कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स होते हैं, एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एन एलिमेंट ऑफ सरप्लस। हॉब्सन कहते हैं कि वी कैन नॉट टैक्स द कॉस्ट एलिमेंट सिंस इट वुड डिस्ट्रॉय द सोर्स ऑफ इनकम itself. Hence, all taxes should be directed towards surplus. Surplus element predominates in higher income group. गरीब आदमी या मिडिल के पास तो पैसा होता नहीं है, सरप्लस हमेशा रिच पीपल के पास होता है। तो हॉब्सन का ये कहना है कि सरप्लस को टैक्स करना चाहिए। सरप्लस एलिमेंट जहाँ हो वहाँ टैक्सेस जस्टिफाई होते हैं। इससे क्या होगा? कंजम्पशन एक्टिविटीज़ कम होंगी, मार्केट में डिमांड कम होगी, उससे इससे जो इन्फ्लेशनरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी और पर्सन को फील भी नहीं होगा, इट वोंट बी पेनफुल। जिसके पास पैसा है वो टैक्स भी दे सकता है, तो इट वोंट बी एनी मोर पेनफुल फॉर द टैक्स पेयर। लेकिन फिर भी हर मेथड को क्रिटिसाइज़ भी किया गया। डीमेरिट्स भी हैं कुछ जो प्रोवाइड किए गए। एक जो डीमेरिट मेन आता है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज़ आर्बिट्री एंड अनसर्टन, देयर इज़ नो गाइडिंग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड। क्योंकि इसकी इलास्टिक नेचर है तो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स विल probably adopt different ways for assessment. तो उसमें यह है कि चेंजेस होते रहते हैं। एक और आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन फॉल्टी सिस्टम ऑफ असेसमेंट, यानी कि रॉन्ग एजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट अब खुद ही एजम्पशंस पे बेस्ड है और उन एजम्पशंस की वजह से इसको भी ये भी सही नहीं है, क्योंकि दिस कौन सा एलिमेंट है? यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव फिनोमेना, हम पढ़ चुके हैं माइक्रो में। सो इट इज़ अनकेपेबल ऑफ कंपैरिजन, हैंस दिस इज़ बेस्ड ऑन रॉन्ग एजम्पशन दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्लाइंस विद द इंक्रीज इन इनकम। नेक्स्ट जो दिया गया है कि इट विल एडवर्सली अफेक्ट प्रोडक्शन एंड डिस्करेज कैपिटल फॉर्मेशन, इट विल हैम्पर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। क्या कहते हैं इस मामले में JS मिल? टू टैक्स द हायर इनकम एट हायर परसेंटेज देन स्मॉलर इज़ टू ले अ टैक्स ऑन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी, क्योंकि हायर इनकम ग्रुप ही ऐसा ग्रुप होता है जो री इन्वेस्ट करता है पैसे को, या इनडायरेक्टली हम कहें कि इकोनॉमी उन्हीं की वजह से चलती है बिकॉज दे हैव सरप्लस। तो रिच को टैक्स करना सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखें तो इसका जो एक बहुत बड़ा कारण है वो है स्कोप फॉर एवेजन। There is large scope for tax evasion in the case of progressive taxation. Why? आपने भी सुना होगा कि लोग टैक्स देने से बचते हैं और बहुत सारे रास्ते निकालते हैं। तो इससे क्या होता है? वो क्या करते हैं? फॉल्स डिक्लेरेशन करते हैं एंड फाइल फॉल्स असेसमेंट, वो अपनी एक्चुअल इनकम को छुपाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, अगर हम इन आर्ग्यूमेंट्स को देखें तो ये शो करता है कि फिर भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज़ द बेस्ट सिस्टम।
It is not only theoretically just, it is practicable, and its administrative difficulties are greatly exaggerated by the criticizers. A moderate degree of progression should be aimed at, whereas very high progression will be perhaps unjust. अगर इसे बहुत सोच समझ कर लगाया जाए तो दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम. सो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस प्रगतिशील कर प्रणाली को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि विच मैथड सेटिस्फाई द मोस्ट ऑफ द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन. उस केस में हम इसी मैथड की बात करते हैं, और विच इज़ द मैथड विच सेटिस्फाइज द कैनन ऑफ, जो कि हमें एडम स्मिथ ने कैनन्स दिए थे या दूसरे कैनन्स हमने पढ़े, उन सब को आप अच्छे से रिलेट कर कर अपने आंसर को लिख सकते हैं. तो इन सब का ध्यान रखते हुए आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. और हम नेक्स्ट देखें तो हमारा एक लास्ट रह गया है डिग्रेसिव टैक्सेशन. डिग्रेसिव टैक्सेशन की बात करें तो ये क्या होता है? ये ऐसी कर प्रणाली होती है जिसमें प्रारंभ में ही कर की दर की आय बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है, चाहे आय कितनी भी हो. तो ये एक मिश्रण है, मिला जुला रूप है. If the rate of taxes increases faster than the income, but towards a fixed minimum rate, these taxes are mildly progressive but not very steep. आप इस फिगर के उससे देख सकते हैं कि पहले जब 10 लाख आय है तो कर की दर 10 लाख है, 20 लाख आय है तो ये कर की दर 20% है, लेकिन उसके बाद जो कर की दर है वो फ्लैट हो जाती है, चाहे इनकम बढ़ती जाए, बट यू हैव टू पे द टैक्स रेट एट 20% ओनली. सो हम इसमें देखें तो if the rate of taxes increases faster than income or property but towards a fixed minimum rate which it can never exceed, it is known as digressive taxation. So digression is a special case of progression where the acceleration of the tax rate decreases as the tax base increases. Mildly progressive है but not very steep. Hence high income do not make due sacrifice. तो ये अप टू अ लिमिट ही ठीक है, उसके बाद ये फ्लैट रेट हो जाता है एंड इट फेवर्स द रिच. तो इस डिग्रेसिव को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. तो हमने आज चारों सिस्टम्स को कंप्लीट कर लिया. आई होप कि आप इसे अच्छे से समझेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, कोई एक मेथड पूछा जा सकता है या जो बेस्ट मेथड है वो पूछा जा सकता है. सो इसको अच्छे से करें और विल टेक नेक्स्ट टॉपिक in next lecture. Thank you so